Hey everyone, in today's lecture we will discuss on अफ्रीकन लिटरेचर। जो अफ्रीकन लिटरेचर है इसके अंदर आप लोग को ज़्यादा डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। ओनली कुछ राइटर्स और उनके वर्क्स दैट दोज आर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है। सो व्हेन वी स्टडी post colonial thing, Britishers, the first seculars and the established their colonies in India, Africa, Australia and certain places. So they tried to dominate the culture and started introducing their own culture. So जो थीम है अफ्रीकन लिटरेचर के वो हैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, fight between tradition and modernity, and the second is celebrate blackness and their version of history. But जो main important theme है अफ्रीकन लिटरेचर का वो है apartheid, which is very important and main theme of Africa. So it is called color segregation and the racial discrimination between white and black. An example of apartheid. So apartheid is a society where white people are considered superior and the people of other races are mistreated. And there are 11 national languages in Africa: Afrikaans, English, Zulu, Xhosa, Sotho, Pedi, Swana, Venda, Siswati, Songa and Ndebele. So these are 11 national languages in Africa, but no need to mug up these languages. Just for learning, just for knowledge, you should read them. And the second important thing is orature, the oral equivalent of little time, lifetime traditional folk songs, stories, etc., and that are communicated orally rather than in writings. Remember this thing, that orature is communicated orally rather than in writings, and it is coined by Pio Zerimo. And there are two important laws which are also very important: Jim Crow law and Black Codes. Jim Crow law which is enforcing racial segregation in Africa between white people and black people in public places such as schools, transportations, restrooms and restaurants. And जो black code है वो है laws that restricted the freedom and movement of black people and forced them to work for low wages, जो created after the end of a civil war to limit the freedom granted of former enslaved persons. और जो रिच बेंजामिन है उन्होंने अपनी बुक में सर्चिंग फॉर बिटोपिया, उनकी बुक है सर्चिंग फॉर बिटोपिया बाय रिच बेंजामिन, उन्होंने अपनी इस बुक में लॉज के बारे में बात की है। कौन से लॉज के बारे में? जो जिम क्रो लॉ है और ब्लैक कोट्स लॉ है, ये बोलते हैं कि जो वाइट पीपल हैं, तो जब वाइट पीपल, हाउ वाइट पीपल ट्रीट विद black people, how did they torture black, how did they force them to be slave, etc. And the important writer of this age are it means अफ्रीकन लिटरेचर्स के जो important writers हैं वो है एंड्रू ब्रिंक। जो साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट है एंड्रू ब्रिंक, एंड फर्स्ट अफ्रीकन नॉवलिस्ट है और राइटर है टू बी बैन्ड बाय गवर्नमेंट आफ्टर ही पब्लिश्ड a novel. And his important novels are A Dry White Season. No need to go in depth, but for knowledge you can read it. So the novel was A Dry White Season, ये उनका नॉवल है। एंड द फादर ऑफ रूरल राइटिंग इन अफ्रीकन लिटरेचर इज़ ओलिवर शेनर एंड द स्टोरी ऑफ एन अफ्रीकन फॉर्म, ये उनकी स्टोरी है, 1883 में पब्लिश हुई थी। एंड एलन पैटन सेकेंड इम्पोर्टेंट राइटर, क्राई द बिलव्ड कंट्री, मस्ट रीड बुक है। क्राई द बिलव्ड कंट्री पब्लिश इन 1948. इट इज़ इन नॉवल सेट इन द प्रिल्यूड टू apartheid in South Africa, and it follows a black village priest and white farmer who must deal with news of a murderer. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है हमारे वो है नदीन गोर्दिमर, वाइट लेडी है राइटिंग अबाउट अफ्रीकन्स, एंड 1991 में नोबेल अवार्ड मिला था इन्हें। इनके फेमस वर्क है ए गेस्ट ऑफ ऑनर, ओनली टाइटल, द कंजर्वेशनिस्ट, रीड समरी, माई सन्स स्टोरी एंड बर्गर्स डॉटर, बोथ आर इम्पोर्टेंट, दो अलग अलग वर्क हैं ये, माई सन्स स्टोरी एंड बर्गर्स डॉटर, ओकेजन फॉर लविंग, ओनली टाइटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर इज मोंगेन वैली सिरोट, एंड उनका वर्क है नो बेबी मस्ट वीप, सिर्फ टाइटल पढ़ना है, नो नीड टू गो इन डेप्थ। ल्यूस निकोसाई, very famous because there are certain works which are dealing with psychology, and he is the first person in African literature who involves in psychoanalysis study literature. इनके important work है Mating Birds, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क है इनका वो है मेंडोलास ईगो। सिर्फ दो इंपॉर्टेंट वर्क पढ़ने हैं, नो नीड टू गो इन डेप्थ।
जेम कोएट्जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। नोबेल प्राइज़ मिला था इनको लिटरेचर के अंदर इन 2003 में। इनका पूरा नाम है जॉन मैक्सवेल और इनका फेमस वर्क है डिसग्रेस। डिसग्रेस एप्रिल 3 साउथ अफ्रीका डेविड ल्यूरी ए केप टाउन एकेडमी reaches a similar conclusion when his daughter Lucy is gang raped by 3 black men at her isolated homestead in Easter Cape. And the next important writer is वॉल सोइंका। वॉल सोइंका जो है वो उनको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में 1986 में और उनका जो फेमस वर्क है वो है लॉइन एंड द ज्वेल। एक कॉमेडी है, हैव बीन आस्क्ड 2 टाइम इन नेट एग्जाम ऑल्सो। His first major play, The Swamp Dwellers, was followed by the another play, The Lion and the Jewel, and it deals with the बरोका। जो लॉयन एंड द ज्वेल है ना, इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, बरोका है, सिद्धि है, लोइनक्लेन है, सेरिकू है और एलुटू है। जो बरोका है वो एल्डरली चीफ है, जो सिद्धि है वो ज्वेल ऑफ द विलेज है। इसमें जो लाइन है ना, इसके अंदर लाइन एंड द ज्वेल, तो लाइन तो है बरोका और ज्वेल है सिद्धि। सिद्धि जो है इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट है लाइन एंड द ज्वेल कॉमेडी के अंदर। सिद्धि इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड द प्लॉट ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हु सिद्धि विल चूज टू मैरी आइदर द स्कूल मास्टर लकुनले एंड और विलेज का जो बेल है मीन्स सीनियर अथॉरिटी फिगर है बरोका, या वो उससे शादी करेगी, किससे वो एज ए हर हस्बैंड चूज़ करेगी, इसके ऊपर है। And at the end of the story, Siddhi accepted to marry with Boroka, village chief, Lion because of his strength and the Fox because of his cunning tricks. Writer emphasizes the theme of corruption, African culture, and how the youth should embrace the original African culture. And the next important writer है वो है जैक मेडा। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है द हर्ट ऑफ रेडनेस। इट इज़ वॉन कॉमनवेल्थ अवार्ड, फर्स्ट अफ्रीकन बुक टू विन द अवार्ड। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो है मिरियम तिलाली। ये फेमिनिस्ट राइटर हैं, फर्स्ट ब्लैक वुमन इन साउथ अफ्रीका टू पब्लिश एन इंग्लिश लैंग्वेज नॉवल बिटवीन 2 वर्ल्ड इन 1975। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर इज पीटर अब्राहम्स। इनका वर्क है माइंड बॉय, ओनली टाइटल इंपॉर्टेंट है। एलेक्स लागुमा ए वॉक इन द नाइट, ओनली टाइटल। एंड्रे ब्रिंक रोमर्स ऑफ रेन, ओनली टाइटल। हेम्बर्ट इजाक द गर्ल हु किल टू सेव, वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट रीड बुक है। ब्यूची मेचटा नेक्स्ट राइटर हैं ब्यूची मेचटा। इनके वर्क हैं सेकेंड क्लास सिटीजन, द जॉय ऑफ मदरहुड, द ब्राइड प्राइस एंड द स्लेव गर्ल। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों मस्ट रीड हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर इज चिमुआ एचबे। चिनुआ एचबे जो हैं ही इज़ क्वेश्चनिंग वाइट कॉलोनिकल राइटर्स कॉन्क्वर्ड रियलिज्म। वी.एस. नायपॉल ने भी रियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन किया है और चिनुआ एचबे ने भी। चिनुआ एचबे द फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन राइटिंग्स and his novel focus on the tradition of Igbo society. He also wrote a number of short stories, children's books or essay collections. And Margaret Atwood called him a magical writer, one of the greatest of the 20th century. और जो इनको अवॉर्डेड भी मिले हैं, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है 2007 में। ही नेवर रिसीव्ड एनी नोबेल प्राइज़। और जो चिनुआ एचबे है ही रोट हिज नॉवेल्स इन इंग्लिश एंड डिफेंडेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ कॉलोनाइज इन अफ्रीकन लिटरेचर। क्रिएट द नाइजेरियन लिटरेरी रिनाइसेंस ऑफ 1960 सेंचुरी, थिंग्स फॉल अपार्ट। इनकी फेमस बुक है थिंग्स फॉल अपार्ट, 1958 में लिखा है। नो लॉन्गर एट ईज 1960 में लिखी है। एंथेलेस ऑफ सावना इन्होंने 1987 में लिखी है। एन इमेज ऑफ अफ्रीका एंड द थिंग्स फॉल अपार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक नॉवेल, 1958 में लिखा गया है, पोस्ट कॉलोनिकल हिस्टोरिकल नॉवल है। एंड द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रोमिटेटिव ट्राइब ऑफ द लोअर नाइजर। ही ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच तो हैज़, इनका टाइटल है इस बुक का जो उन्होंने चूज़ किया था, एज पैसिफिकेशन ऑफ द परमिटेटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर। And the title come from line in W.B. Yeats poem The Second Coming। जो W.B. Yeats है उसके पोइम द सेकेंड कमिंग से इन्होंने अपना थिंग्स फॉल अपार्ट का जो टाइटल है ये चूज़ किया है।
एंड द नॉवल फॉलोज द लाइफ ऑफ ओकोंकोवो। ओकोंकोवो की लाइफ को फॉलो किया है नॉवल ने। एंड इग्बो हैं, लीडर हैं एंड लोकल रेसलिंग चैम्पियन है इन द फिक्शनल नाइजेरियन विलेज ऑफ योफिया। और जो निक नेम है ओकोंकोवो का वो है द कैट। जो नॉवल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉवल इज इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट डिस्क्राइबिंग हिज फैमिली एंड पर्सनल हिस्टोरिकल कस्टम्स एंड सोसाइटी ऑफ द इग्बो। और जो सेकेंड और थर्ड है दे इंट्रोड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनिज्म एंड क्रिश्चियन मिशनरीज ऑन द इग्बो कम्युनिटी। सो ब्रिटिश कॉलोनिज्म एंड क्रिश्चियन मिशनरीज को इम्पोर्टेंट है, ये लर्न करना है। 3 पार्ट्स है इसके। और ओकोंकोवो एंड इग्बो हैं, लोकल रेसलिंग है, चैम्पियन है और यूमोफिया के हैं, रहने वाले हैं गाँव के नाइजेरिया में ये लोग। सो ये तो हो गया हमारा थिंग्स फॉल अपार्ट की थोड़ी बहुत समरी मैंने बताई, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। और जो नो लॉन्गर इट इज़ है वो सेकंड वर्क है चिनुआ एचबे का। सो इट इज़ द सेकंड नॉवल ऑफ द अफ्रीकन ट्रायोलॉजी एंड द प्रोटेगनिस्ट इज ओबी ओकोनोवो एंड द ग्रैंड सब ऑफ ओकोनोवो। जो ग्रैंड सन है ओकोनोवो के वो है ओबी ओकोनोवो। हमने ग्रैंड सन ओकोनोवो के बारे में किसने पढ़ा था? ओकोनोवो के बारे में हमने थिंग्स फॉल अपार्ट में पढ़ा था। और नो लॉन्गर इट इज़ में इनके ग्रैंड सन के बारे में। सो प्रोटेगनिस्ट ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट के ओकोनकोवो के ग्रैंडसन है ओबी ओकोनकोवो। सो द टाइटल ऑफ द नॉवल इज टेकन फ्रॉम द क्लोजिंग लाइन्स ऑफ टी.एस. इलियट द जर्नी ऑफ द माजाई। जो द जर्नी ऑफ द माजाई है टी.एस. इलियट का, उससे ली गई है नो लॉन्गर इट इज की टाइटल। सो यहाँ पर जो ओबी है, ओबी लीव्स हिज विलेज, उसने अपने गांव को छोड़ दिया था फॉर ब्रिटिश एजुकेशन के लिए एंड गेट इज जॉब इन नाइजेरियन कॉलोनियल सिविल सर्विसेज में उसने एक जॉब भी गेट करी थी। एंड द स्ट्रगल्स इन द नॉवल टू अडॉप्ट ए वेस्टर्न लाइफ स्टाइल एंड द एंड्स अप टेकिंग ब्राइब्स। सो द थिंग्स फॉल अपार्ट, नो लॉन्गर इट इज एंड द एरो ऑफ गॉड। ये ट्रायोलॉजी है किसकी? चिनुआ एचबे की। सो एंथल्स ऑफ द स्वाना, ये इनका नेक्स्ट वर्क है। एंड द नेक्स्ट राइटर इज नरुद्दीन फरा। नरुद्दीन फरा ए नेक नीडल एंड ए फ्रॉम ए क्रुक्ड रिब। ये 2 इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स है बट ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट, नॉट इट टू गो इन डेप्थ। बेसी हेड इज नेक्स्ट राइटर फ्रॉम बोत्सवाना एंड इनका फेमस वर्क है व्हेन रेन क्लाउड गैदर, ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वर्क है बेन ओकरी द फेमस रोड वॉन बुकर अवार्ड एंड एक्नॉलेज राइटिंग अवार्ड इन 1987। सो द नरेटर अज़ारो है, इसके लिए एक अब जो अज़ारो है वो एक अबिकू है, ए स्पिरिट चाइल्ड हु इन योरुबा ट्रेडिशन ऑफ नाइजेरिया एग्जिस्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ एंड दिस डील्स विद द अफ्रीकन मैथोलॉजी। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर इज ख्वेस्मेन सेम्बेन। ख्वेस्मेन सेम्बेन का इम्पोर्टेंट वर्क है द लास्ट ऑफ द एम्पायर, डील्स विद द अफ्रीकन नेटिव लाइफ। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर इज निगुओ वा थियोंगो। जो निगुओ वा थियोंगो है ही इज़ द वन हु सेड दैट आई विल नेवर राइट इन लैंग्वेज ऑफ कॉलोनीज। यहाँ पर कॉलोनीज की लैंग्वेज किसको बोलते हैं? वो इंग्लिश को। एंड स्टार्टेड अवॉइडिंग इंग्लिश लैंग्वेज बाय राइटिंग हिज ओन लैंग्वेज। एंड इनके फेमस वर्क्स हैं ब्लैक हर्मिट, वीप नॉट चाइल्ड, ए ग्रैन ऑफ वीट एंड डीकोलोनाइजिंग द माइंड। इसमें वीप नॉट चाइल्ड एंड डीकोलोनाइजिंग द माइंड बोथ आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर है टोनी मॉरिंसन, जिनके वर्क हैं बिलव्ड एंड द ब्लूएस्ट आइज। ये 2 इम्पोर्टेंट वर्क हैं इनके बट नो नीड टू गो इन डेप्थ। सेकेंड इम्पोर्टेंट राइटर इज़ विलियम वेल्स ब्राउन। इन्होंने अपना वर्क लिखा था क्लोटेल, जो बैंड है एंड द क्लोटेल इज द प्रेसिडेंट्स डॉटर का टाइटल है एंड द फर्स्ट नॉवल पब्लिश्ड बाय एन अफ्रीकन अमेरिकन एंड इज सेट इन यूनाइटेड स्टेट। थीम है इसका जेंडर, रेस एंड स्लेवरी। फिर नेक्स्ट राइटर है चिमनंदा निगोई एडिचे एंड हाफ ऑफ ए येलो सन। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है हाफ ऑफ ए येलो सन। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ द बिराफन वॉर। बिराफन वॉर की स्टोरी को बताता है थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द कैरेक्टर्स ओलाना, उगवू एंड रिचार्ड। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं पर्पल हिबिकस एंड वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट्स आर एंड वी मस्ट रीड दैम। सो ये अफ्रीकन लिटरेचर का हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट राइटर्स थे और उनके वर्क्स थे, मैंने उनके बारे में आप लोगों को बता दिया है। अगर इनमें से आपको किसी इम्पोर्टेंट वर्क की स्टोरी जानी है, नॉवल जानना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।